hope everybody is fine at home and your family is doing well. So today lecture is continuation lecture of last we covered in shear strength of soil, right? So two lecture is already covered with the shear strength. Now we are continuing with the shear strength again. So this is the, I think numerical are pending after this lecture. Then we will cover the next introduction. So in the next see, we left in the last class about hello. Am I audible to everyone? Dipesh said कि my voice is not coming. Please make me ensure am I audible to everyone? सर बहुत कम साउंड आ रहा है सर वॉइस So we are talking about shear strength in the last lecture. So continued with the shear strength. So we are left with the test of shear strength. How what are the tests and how we are going to perform them and how we check the shear strength by using those tests. So let's see. First of all, so initially, if you see in the last class, we studied about the Coulomb-Mohr equation. So the original form of the Coulomb equation, which was given by Coulomb's, in that the all the values that we get is equal to shear strength or shear strength is equal to C plus sigma 10 phi was the equation. All the terms they are coming into the total stress. At that time Coulomb's equation which is given by the Coulomb itself, जो कि सारी स्ट्रेसेस हमें मिली थी, जो shear strength के टर्म हमें मिल रही थी वो किस फॉर्म में मिल रही थी, क्वेश्चन प्लस द टोटल स्ट्रेस इनटू 10 phi that is the frictional angle between the soil board there. तो ये हमें इक्वेशन मिल रही थी, बट आफ्टर तरजागी इंट्रोड्यूस इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल, बिफोर दैट इक्वेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ टोटल स्ट्रेसेस. आफ्टर तरजागी ने जो इंट्रोडक्शन दिया इफेक्टिव स्ट्रेसेस का विद द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल जो गिवन बाय द तरजागी, उसके बाद में इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया और नाउ द शियर स्ट्रेंथ इज रिलेटेड विद द इफेक्टिव स्ट्रेसेस आल्सो. So now we can say the modified Coulomb's equation can be written as shear strength, which is shown into your screen, tau f, shear strength at failure or shear stress at failure, which is equal to C phi C dash. C dash means effective cohesion, और जो कि आगे मैं इसकी टर्मिनोलॉजी है नेक्स्ट स्लाइड में यू विल सी व्हाट डज इट मीन. सी डैश प्लस सिग्मा डैश 10 phi dash, or sigma dash is nothing but it is effective stress, which is nothing but total stress minus pore water pressure that we already seen in your consolidation chapter that we already covered into the physical mode classes. So this equation, the equation that we studied in the last lecture, that was into the terms of total normal stresses. Now we are introduced or modified that Coulomb's equation after introducing Tarjagi effective stress principle. The terminology or that equation is modified and written as C dash plus sigma dash 10 phi dash, which is nothing but here sigma is your effective stress, which can be calculated if we know the total stress minus the pore water pressure. Pore water pressure I already told you we can measure, or there are different tests to calculate the stresses or shear strength of the soil that we will see in the particular this lecture after one by one slides moving across. Fine. So C dash is effective cohesion, which I just told you, or cohesion refer to the effective stresses. C dash पहले हमने जो last equation देखा था in the last class, there were notation given was C only. तो C means the cohesion only, or cohesion refer to the total stresses. Now C dash is the new or modified equation over which we are using C dash instead of C. C dash means effective cohesion, or cohesion refer to the effective stresses. Sigma dash already told you effective normal stress on the plane of failure or rupture, और फेलियर प्लेन के ऊपर इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेसेस जो आएंगे उनको हमने रिप्रेजेंट किया है सिग्मा डैश से. फाई डैश इज द एंगल ऑफ shearing resistance. Angle of shearing resistance refer to the effective stresses. Now each and every terms related to effective stresses. अब effective stresses कैसे आएगी वो आपको पहले भी आप लोग जानते हो, because we are in almost end of this subject particularly. So mu
if we know the mu value, we know the pore total stress, so we can easily calculate the effective stresses. So mu is pore water pressure on the plane of failure or rupture of the failure. जब फेलियर के टाइम पे पोर वाटर प्रेशर हमें पता है, टोटल स्ट्रेसेस कितनी लग रही है वो पता है, तो वी कैन कैलकुलेट इजीली दैट your effective stresses at the time of failure or rupture. So these the thing which is just modified after introducing the Tarjagi principle of effective stresses. Before, the equation was, a question may ask into your exam, uh, what is a Mohr-Coulomb theory before Tarjagi effective stress. So Mohr-Coulomb equation was the remain same, that is C tau F is equal to C plus sigma 10 phi. After introduction of or modified equation become C tau F or failure shear stress is equal to C dash plus sigma dash 10 phi dash. So there is a bit change after introducing the effective stress, so that we are incorporated into the equation, and that's why it is called modified Coulomb's equation. So in terms of the total stress, the same equation was written as I told you in the last class also. So tau F, which is equal to Cu plus sigma 10 phi U. U stands for total stress here. Cu cohesion refer to the total stresses. Phi U is nothing but angle of shearing resistance refer to the total stress. Here the strength parameter in terms of effective stress C and phi would be taken as constant for soil provided. किस वजह से इन दो टर्मिनोलॉजी को और पैरामीटर को हम कांस्टेंट मान सकते हैं ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस सी और फाई को, किस लिए? अगर प्रोवाइडेड ऐसा अगर होता है, वर्ड रेशियो, डेंसिटी, पोर प्रेशर एंड ऑल रिमेन सेम फॉर डिफरेंट नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यूज। अगर किसी भी नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यूज के ऊपर वर्ड रेशियो, डेंसिटी और पोर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट अगर रहे, सेम रहे फॉर डिफरेंट नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यूज, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? No, it is not possible practically, because word ratio is going to be changed if there is a normal stresses are going to be changed. अगर normal stresses change होंगी तो word ratio change होगा, और definitely और density अगर word ratio change होगा तो even density is also, and similar the pore pressure also. So these things will change, they are governed by the stresses applied on the soil, so they will going to be changed. ओनली इन दैट का अगर ये प्रोवाइडेड ये चारों तीनों या चारों चीजें अगर रिमेन कांस्टेंट है, इन दैट केस स्ट्रेंथ पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ सी एंड फाई वुड बी टेकन एज कांस्टेंट. सिंस दिस नेवर हैपेंस, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आई एक्सप्लेन यू, दिस never happens in actually practically field. If you see, these things are not going to be same, remain same ki before the test or after test they are going to be remain same, they are going to be changed because you are changing the stresses. That's why these things are going to be changed. तो definitely change होने का तो C और phi will never be constant. So ये property आपकी जो govern कर रही है shear strength को, तो ये चीजें change होगी वहाँ पे. Since this never happens in actually is represent in terms of types of test. ये डिपेंड किस पे करेगी, एक्चुअली आपकी टेस्ट क्या कौन सा परफॉर्म कर रहे हो, क्या कंडीशन कर रहे हो, अंडर विच दोज टेस्ट आर परफॉर्म, दे ऑन दोज थिंग्स दीज टर्म्स आर बेस्ड. तो अब क्या क्या कंडीशन होंगी, कैसे करते हैं, दैट आई वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस नेक्स्ट स्लाइड. सो टाइप्स ऑफ shear strength. So what shear strength अभी तक हम अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आई होप सो. नाउ द टाइप ऑफ shear strength, what do you mean by the types of shear strength and what are their types and how we are going to calculate them, that we are going to see. Undrained shear strength. So first of all we try to understand it by the name given, undrained shear strength. What do you mean by undrained? Basically undrained means resistance against the drainage, means you are not allowing the drain, मीन्स पोर जब भी स्ट्रेसेस उस मेंबर या सोयल मीडियम के ऊपर पड़ेगा तो आपने क्या किया है, ड्रेन मीडियम नहीं दिया, अनड्रेन्ड कंडीशन है, पोर वाटर इज नॉट अलाउड टू पास फ्रॉम द सोयल स्पेसिमेन. तो पोर वाटर प्रेशर अब डेवलप होगा और सारा का सारा जो प्रेशर आ रहा है सोयल के ऊपर स्ट्रेसेस की फॉर्म में, जो लोड आपने अप्लाई किया हुआ है अपर स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है या किसी एक्सटर्नल मीन की तरफ से आ रहा है, वो सारा का सारा लोड है वो किसने कैरी कर लेना है, दैट वॉट कैरीड बाय द पोर वाटर प्रेशर इटसेल्फ. तो अनड्रेन्ड shear strength if saturated soil mass. अब what do you mean by saturation? Saturated means the soil degree of saturation is 100 or either you can say it's equal to 1.
If saturated soil mass is subjected to shear loading, there is a shear loading is acting, soil is undrained. अगर undrained हुआ means you are not allowed to expel the water from the pore. In that case pore pressure is developed. जैसे ही लोड डालो pore water pressure will the pore pressure will developed in the soil specimen. Then shear strength corresponding to undrained condition can be written as tau zfu means undrained condition cu plus sigma 10 phi u. If you relate this term, कुछ बुक्स में सी के साथ यू नहीं मिलेगा, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद इट. ये सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजी जो आपको कूलम्स की इक्वेशन मिल रही है, ये किस कंडीशन में आ रही है? अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ. अगर अनड्रेन्ड का मतलब है तो क्या मीनिंग क्या होता है इसका मैं आपको बता देता हूँ. इसका मीनिंग ये है कि जो सारा का सारा स्ट्रेसेस जो डेवलप होगा वो किसने कैरी करना है? दैट इज कैरिड बाय द पोर वाटर प्रेशर इनटू द सोइल. जितना पोर वाटर प्रेशर आएगा वो सारा, क्योंकि हम ड्रेन आउट तो होने नहीं दे रहे हैं, एक्सपेल आउट ऑफ वाटर इज नॉट गोइंग टू हैपन. तो जो स्ट्रेसेस आ रहा है वो किसने कैरी करना है? जितना टोटल स्ट्रेसेस है विच इज कैरिड बाय द पोर वाटर प्रेशर इटसेल्फ. अब वो ले लेना है तो इफेक्टिव स्ट्रेस उसमें आएंगे नहीं. तो अब ये टर्मिनोलॉजी जो इक्वेशन बन के निकल रही है आपके सामने, दैट टर्म इज रिलेटेड टू द टोटल स्ट्रेसेस ओनली. तो टोटल स्ट्रेसेस वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट हेयर इफेक्टिव स्ट्रेसेस और एनी इफेक्टिव पैरामीटर्स बिकॉज अनट्रेन्ड कंडीशन इज देयर. राइट. अनड्रेन्ड के अंदर पोर वाटर प्रेशर निकलेगा नहीं. तो अगर आपको इफ माइट यू रिमेंबर, हमने क्लास में जब डिस्कस किया था व्हाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द तरजागीज थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल, एट दैट मोमेंट आई शो यू 9 फिगर्स ओवर देयर कि अगर पानी आप प्रेशर डाल रहे हो और आपके पास डबल ड्रेनेज कंडीशन है, इन दैट केस क्या होता है? जैसे आपने लोड डाला, लोड डालते ही इनिशियली एट टी टाइम इक्वल टू जीरो, सारा का सारा जो स्ट्रेसेस आ रहा है वो किसने कैरी करना है? वाटर ने कैरी करना है. ठीक है. अब वाटर ने कैरी करना है. जैसे जैसे आप स्ट्रेसेस बढ़ाते चले जाओगे वाटर विल एक्सपेल आउट फ्रॉम द पोर्स. ठीक है. अब वो पानी जो निकलता चला जा रहा है उतना स्ट्रेसेस जो पहले कंप्लीटली पोर वाटर प्रेशर कैरी कर रहा था, अब कुछ पानी उसमें से बाहर निकला, तो जो पानी बाहर निकला है उसने कुछ स्ट्रेसेस ली हुई थी, वो स्ट्रेस अब किस पे ट्रांसफर हो जाएंगी? सोइल सॉलिड्स के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी. ठीक है. तो वो रिमेनिंग स्ट्रेसेस वो सोइल सॉलिड्स पे जो ट्रांसफर हो रही है वही तो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेसेस है. मतलब टोटल स्ट्रेस में से कितनी स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर ले रहा है, कितना सॉलिड ले रहा है, तो वही तो हमारे जो सॉलिड पोर वाटर प्रेशर जो निकला है वो कैरी कर रहा था पहले खुद. अब उसका वो जितना वो बाहर निकला, वो बचा हुआ जितना स्ट्रेस पहले पोर वाटर ले रहा था वो कोई कौन कैरी कर रहा है? सॉलिड कैरी कर रहा है. तो सॉलिड कैरी जो कर रहा है वो सारा का सारा नाउ उसको हम कह देते हैं शियर स्ट्रेस. और शियर स्ट्रेस कैन बी कैलकुलेटेड टोटल स्ट्रेस माइनस द पोर वाटर प्रेशर. जो पोर वाटर प्रेशर ने कैरी की हुई है माइनस कर दीजिए टोटल स्ट्रेस में से जो बचा हुआ, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेसेस आर दो स्ट्रेसेस विच इज कैरिड बाय द सोइल सॉलिड्स. ठीक है. तो ये चीज होती है. तो इस इक्वेशन को यहाँ पे हम जो रिलेट कर रहे हैं ये टोटल स्ट्रेसेस के फॉर्म में. देयर इज नो इफेक्टिव स्ट्रेसेस बिकॉज ऑल द बिकॉज पोर वाटर इज नॉट अलाउड टू ड्रेन आउट फ्रॉम द सोइल मीडियम. तो सारा का सारा जो स्ट्रेस आ रहा है वो किसने कैरी किया हुआ है? पोर वाटर ने. तो इसीलिए सारा का सारा यहाँ पे स्ट्रेस है वो डायरेक्टली टोटल स्ट्रेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है. If you have any question, please raise your hand, or either you can put message, so I will stop there and you can ask your question related to that topic. Otherwise I from my side I find कि हाँ समझ आ रहा है, so I will continue with the lecture. Fine. If you have any question, first of all raise your hand, I will unmute you and you can ask your question. ठीक है. Otherwise or those have background music like Jairam Shah has, so please do not unmute yourself. So in that case CU or CC, which some books are use CU, some books are C, so both the term are mentioned over here. Undrained total cohesion, phi U and phi, that is undrained are total frictional angle. Phi is the total normal stress on the failure plane. If fast loading is done, what does it mean? मैं अभी बताता हूँ आपको. If fast loading is done on the saturated clay,
then in short term condition undrained shear strength should be determined. अब हमें ये चीज़ें कंडीशन डिफाइन करनी होगी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि टेस्ट कौन सा करना है, कौन सी स्ट्रेंथ आपने चेक करनी है, ये डिपेंड करेगी टाइप ऑफ सोइल और टाइप ऑफ द कंडीशन इन विच यू आर परफॉर्मिंग द टेस्ट। ठीक है। इफ फास्ट लोडिंग इज डन, मतलब सपोज करो आपने कोई कंस्ट्रक्शन है, दे कंस्ट्रक्टिंग वेरी वेरी फास्ट, मीन्स विद इन 10 days, like in the COVID situation, if you've seen, maybe you are aware about the news, China made a hospital within a week. So in that condition, so the loading is coming very fast on the soil itself. In that case, fast loading done on the saturated clay particle है, मतलब फाइन सोइल है जो उसकी सेचुरेटेड है, इन दैट टर्म अनड्रेन्ड shear strength should be determined. Why so? अगर आपने अनड्रेन्ड नहीं करते हो, ड्रेन्ड shear strength चेक करते हो, लेट आई विल let you know about this all the condition after the completion of drained shear strength and other parameters also. So I will put this point again in front of you at that time, so keep it as suspense for this point. For clay in short term condition undrained shear strength should be determined. Why so? I will let you know in the further in this particular class only. Now next, drained shear strength. पहले इसको भी समझेंगे और पहले वाली टर्म आई होप कि सब बच्चों को समझ आई होगी। इन दोनों को उसके बाद में वो जो एग्जांपल पुट कर रहा था, दैट वी विल डिस्कस अगेन एंड आई विल मेक यू एक्सप्लेन इट. What does it drained mean or what does it undrained mean, or why we perform undrained in the fast loading and slow loading, what kind of test we need to perform, that we will see. If loading rate is slow and expulsion of pore water completes during loading, and then pore pressure is dissipated out and shear strength corresponding to drained condition. अब क्या मतलब हुआ इसका? What does it mean? It means is, अगर आपकी रेट ऑफ लोडिंग इज वेरी स्लो, मीन्स लोडिंग जो आ रही है आपने, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू सीन इन द इंडिया स्पेसिफिकली, कंस्ट्रक्शन है हमारे 10-10 साल भी चलते रहते हैं, कोई 15 साल चल रहा होता है, तो मतलब लोडिंग इज कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर सोइल इज वेरी 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 स्लो एट वेरी स्लो रेट। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको पता है कि कंसोलिडेशन के जो प्राइमरी और सेकेंडरी कंसोलिडेशन है ऑलवेज रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीटेशन दैट प्रोसेस। तो पोर वाटर प्रेशर ऐसा नहीं है कि आपने प्रेस किया और निकल गया, इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट। जैसा कि स्पंज में होता है, आप क्या करते हो, पहले उसको पानी डाला और उसको आपने प्रेस किया, तो इनिशियली डायरेक्टली आपकी लोडिंग क्या थी, बड़ी फास्ट थी और पानी सारा का सारा एक्सपेल आउट हो जाता है। अगर आप अनड्रेन्ड कर रहे हो, मीन्स यू आर नॉट अलाउइंग टू ड्रेन आउट वाटर फ्रॉम दैट स्पंज मटेरियल, तो क्या होगा, सारा का सारा जो आपका लोड आप हाथ से जो दबाने वाला प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, वो किसने कैरी करना है, ऑब्वियसली पोर वाटर ने कैरी करना है। बट अगर आपने उसको एक्सपेल आउट करना स्टार्ट कर दिया तो पानी तो बाहर निकल गया, नाउ वाटर जो लोड आप प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो वो किसने कैरी करना है, जो आपका स्पंज मटेरियल बना हुआ, मीन्स उसके सॉलिड पार्टिकल्स ने कैरी करना है। तो वी कैन रिलेट दैट विद द सोइल मीडियम, बट इट्स इतना नहीं होता है कंप्रेस जाता कि स्पंज हो जाता है, इट्स नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ सोइल मीडियम। इफ लोडिंग रेट इज स्लो एंड एक्सपेल्सन ऑफ पोर वाटर कंप्लीट्स, मतलब पानी का बाहर निकला कंप्लीट हो जाता है, इन दैट केस ड्यूरिंग द लोडिंग द पोर प्रेशर इज डिसिपेटेड आउट। अब लोडिंग के साथ ही आपने अलाउ किया हुआ है पानी को बाहर निकलने के लिए, और ड्यूरिंग द लोडिंग मतलब ड्यूरिंग द टेस्ट परफॉर्मेंस, पानी जो आपका वाटर है दैट गेट्स आउट फ्रॉम द पोर एंड shear strength. In that condition we can calculate like it is given, shear strength at failure in a drained condition. Tau f d का मतलब है drained, f means at failure, tau means the shear strength, cd cohesion at drained condition or effective cohesion, plus sigma dash 10 phi d. Sigma dash is your effective stress, 10 phi d means drained or effective frictional angle. Here we are introducing effective stress. Why so? Because draining is allowed, means pore water pressure or pore water comes out or expel out from the pores. अब जो बचा हुआ स्ट्रेसिस होगा, जितना पानी बाहर निकला हुआ उस पानी की ने जो लोड कैरी किया हुआ था, जो स्ट्रेसिस कैरी की हुई थी, वो अब किस पे ट्रांसफर हो जाएंगी, सोइल सॉलिड्स पे। और जो सोइल सॉलिड ने कैरी किया है स्ट्रेसिस, टोटल स्ट्रेसिस का कुछ पार्ट, until
कंप्लीट पोर वाटर है वो बाहर नहीं निकलेगा। जित कुछ उसने मान लो अगर 100% इनिशियली है, टाइम टी 0 करके हम मान के चलें, टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कोई, तो उसके ऊपर क्या होगा, सारा का सारा वेट जो सोइल पे आ रहा है, जो लोड सोइल पे आ रहा है, वो किसने कैरी किया, पोर वाटर प्रेशर ने। अब आपने अलाउ कर दिया ड्रेन को आउट होना, लोड आप बढ़ा रहे हो या कंटिन्यू भी है वो, उस पर धीरे धीरे उसका कंटिन्यूसली मतलब वो लोड वहाँ पे है और आपने वाटर को अलाउ किया, तो पानी क्या होगा, निकलना स्टार्ट होगा। अब टोटल मीडियम तो आपके पास दो ही थे ना, सेचुरेटेड सोइल है, आइदर सॉलिड्स होंगे और वाटर होगा। अगर वाटर आउट होना स्टार्ट हुआ है तो जो स्ट्रेसेस होंगे जो वाटर ने लिए हुए थे वो अब सॉलिड्स पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कहने का जितना स्ट्रेस, जितना पानी बाहर हुआ था उस पर जो स्ट्रेस आ रही थी वो अब किस पे ट्रांसफर हो जाएगी, सॉलिड्स के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। तो जो सॉलिड्स पे ट्रांसफर हो रही है उसी को हम बोल रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेसेस। तो टोटल स्ट्रेस जितना आया, कितना पोर वाटर ने कैरी किया, उसका डिफरेंस निकालो, आपके पास निकल आएगा इफेक्टिव स्ट्रेसेस। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर अब हमारे पास हो गया एक अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ, एक हो गया ड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ। अनड्रेन्ड के अंदर सारा का सारा स्ट्रेस है वो पोर वाटर ने कैरी करना है, ड्रेनिंग इज नॉट अलाउइंग। ठीक है, इन दैट केस जैसे कि लोडिंग बहुत जल्दी हो रही है, आपने जैसे कि मैंने एग्जांपल पुट किया था, चाइना ने एक स्ट्रक्चर बनाया था वाइल कोविड सिचुएशन, टू डील द कोविड सिचुएशन दे made a constructed a hospital within 7 days. That was the news. I do not know the facts about that. I hope कि आप लोगों को भी इसके बारे में पता होगा, माइट भी। अब उसके बारे में से ट्रुथ की बात नहीं कर रहा हूँ, उसी अगर ऐसा हुआ होगा या हुआ है तो क्या हो रहा है, आपकी लोडिंग बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। ठीक है, उस केस के अंदर जो टेस्ट परफॉर्म हमें करना चाहिए वो अनट्रेंड करना चाहिए, बिकॉज ड्रेनिंग है वो जो एक्सपेल आउट होना वाटर का पोर से इज नॉट ए सिंगल डे और 2 डे टास्क, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए अनट्रेंड उस कंडीशन में, और स्पेसिफिकली इफ देर इज ए क्ले टाइप सोइल, बिकॉज क्ले की परमेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, तो पोर वाटर प्रेशर का बाहर निकलना इट्स नॉट ए इजी टास्क। जैसा कि हमें पता है अनड्रेन्ड जो कंसोलिडेशन का अगर पैरामीटर टेस्टिंग हम करने जा रहे थे कि कंसोलिडेशन इज नेवर गोइंग टू बी हैपन इन ए डे और 2 डे, इट विल टेक टाइम, इवन टेक 100 of years। ठीक है, तो कंटिन्यूसली रहता ही। तो इस चीज़ को अब हमने रिलेट कर दिया, हमारे पास दो स्ट्रेंथ निकल के आ रही हैं, वन इज ड्रेन्ड, अदर इज अनड्रेन्ड shear strength। आई होप इट इज़ क्लियर, प्लीज लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड कि आपको ये क्लियर हो गया। Please let me know. Manveer Mehta said yes, it's fine. And there are other two also. So be participate. So we get a idea about it. So if anybody have any question, they can ask into the chat box. So I will read from there and let give you the answer. ठीक है, किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन पुट इनटू द चैट बॉक्स, आई विल रीड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ क्लास, आई विल बैक टू द टॉपिक एंड देन लेट यू एक्सप्लेन अबाउट दैट। So being that time, please keep your question with yourself, or either you can put into the chat box. So I will read from there and let. Right. So let me complete first the lecture. Continuously with the smooth flow which generally I used to do, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। So if you have any question, you can put into the chat box. I will read from there and let you know after the completion of class. So they discuss about that. So next is note, if you see if loading is slow both in short term and long term and short term means लोडिंग का टाइम है वो बहुत कम टाइम के लिए होना और एक लंबे टाइम के लिए, कंडीशन सेंड फॉर लॉन्ग टर्म कंडीशन एंड क्ले ड्रेन्ड shear strength should be determined। अब अगर मान लीजिए इफ लोडिंग इज स्लो बोथ इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, लोडिंग का जो अगर थोड़े टाइम के लिए भी स्लो है और ज़्यादा टाइम के लिए भी स्लो है ऑन सेंड एंड फॉर लॉन्ग टर्म कंडीशंस, अगर लॉन्ग टर्म कंडीशन की स्लो सेंड में अगर कर रहे हो, इसका मैं ध्यान से देखिएगा, इफ लोडिंग इज स्लो इन बोथ इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कंडीशन, लोडिंग का जो वेट डालने की कंडीशन है बहुत स्लोली कर रहे हो आप, ग्रेजुअली वो टाइम लेके लोडिंग बढ़ रही है, इन दैट केस short term and long term condition on send and for long term condition slow loading और long term के लिए हो रही है, in that case
क्ले ड्रेन्ड shear strength should be determined. तो उस केस में हम ड्रेन्ड shear strength भी क्ले के लिए भी कर सकते हैं, स्लो लोडिंग विद लॉन्ग टर्म कंडीशन, राइट. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज वी हैव डिफरेंट टेस्ट, और कुछ स्टेजेस हैं लोडिंग के, उसको हम देखते हैं. सो लेट्स सी वन बाय वन. क्वेश्चन है. Raghav, please wait. I will let you know after the completion of the class, right? So no issue. We will discuss about this topic, your question specifically. So students, please participate into the questions and answer session. So we will get idea about how the things are coming. So कुछ चीजें अगर आप question कर रहे हो, it means you are learning something, you are saying something, you are understanding something. क्वेश्चन बनाना भी इजी नहीं होता है, सिंपली बताऊँ. अगर आपको समझ आएगी, इन दैट केस यू आर एबल टू आस्क द क्वेश्चन. सीधा सुन के एक जैसे एक सत्संग चल रहा होता है, वहाँ पे आपने सुना और घर पे चले गए जी, वैसा वाले बात नहीं होती. प्लीज लिसन एंड ट्राई टू मेक द क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक एंड डिस्कस अबाउट दैट. तो वो चीज़ें क्लियर होती हैं फिर, ठीक है. Now type of shear test on the basis of drainage. The selection of test will be depend upon again the type of soil, purpose of test, why we are performing, at what rate of the loading is going, it is a long term, short term, fine, which type of soil is this, what are the drainage condition, it is the undrained condition or drained condition. There are two stages of soil loading. One is confining pressure stage, मतलब फर्स्ट स्टेज जिसको हम सेल्फ प्रेशर स्टेज भी बोलते हैं. दूसरा है वो डेविएटर स्टेट और बैक प्रेशर और सी स्टेज. अब इसमें क्या करते हैं, अभी के लिए आप फिर से इसको होल्ड करिए, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा यू विल गेट योर आंसर रिलेटेड टू दिस टू. तो दो स्टेजेस के अंदर किसी भी टेस्ट के अंदर कोई भी टेस्ट कर रहे हो कि दो स्टेज के अंदर वो परफॉर्म होगा. वन कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज, सेकंड इज डेविएटर स्टेज और शियर स्टेज जिसको हम बोल रहे हैं. और कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज को बोलते हैं सेल्फ प्रेशर स्टेज. उसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, दैट वी विल सी. बट इज कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज में क्या होता है, डेविएटर स्टेज में क्या होता है, इसके बेसिस पे हमने आगे फिर से फर्दर क्लासीफाई किए हुए हैं. अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट जिसको हम यूयू टेस्ट और क्विक टेस्ट है, बहुत जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं. अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, इसका पहले तो हमें बाय द नेम ऑफ द टेस्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो अगर ये नेम से समझ आता है तो अच्छी चीज़. कोई भी चीज़ होती है डेफिनेटली अगर आप नेम से समझ आते हो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, व्हाट डज इट मीन. कंसोलिडेशन होना, एक अनकंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेशन इज नॉट गोइंग टू बी टेकन प्लेस, अनड्रेन्ड ड्रेनेज इज नॉट अलाउड, ठीक है. और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म यूयू टेस्ट, इसको अनड्रेन्ड टेस्ट भी बोला जा सकता है. बट just to make a different name basically, dated undrained test, uu test और quick test होता है ये. this test is complete in 5 to 15 minutes, 5 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है. in this test expulsion of pore water is not permitted in the both the stage. कौन कौन सी स्टेज है वो हमने अभी देखा. वन इज कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज, सेकंड इज डेविएटर स्टेज. इन दोनों स्टेज के अंदर पानी का पोर वाटर प्रेशर का एक्सपेल आउट होना फ्रॉम द पोर्स इज नॉट अलाउड बोथ इन द बोथ द स्टेज. इट इज सुटेबल फॉर सैचुरेटेड क्लेज इन शॉर्ट टर्म एनालिसिस अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन एट फास्ट लोडिंग रेट. अब ऐसा क्यों किया जाता है, मैंने फिर से बताया. इफ इट इज सुटेबल फॉर सैचुरेटेड क्ले, मतलब वेट सैचुरेटेड क्ले फाइन सॉइल के लिए अच्छा रहेगा ये वाला टेस्ट. इन शॉर्ट टर्म एनालिसिस अंडर कम टाइम में जिसमें लोडिंग आ रही है, अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन एट फास्ट लोडिंग, थोड़े टाइम के लिए और ज़्यादा लोडिंग एकदम से फास्ट लोडिंग उस पर आ रही है, उस केस के अंदर दिस टेस्ट कुड बी परफॉर्म्ड फॉर द क्ले टाइप ऑफ सॉइल. अनड्रेन्ड कंडीशन जिसमें वाटर इज नॉट अलाउड मीन्स अनकंसोलिडेशन कंडीशन, जहाँ पे अनकंसोलिडेशन का मतलब है पोर वाटर प्रेशर लिया ही नहीं जाएगा. तो किसने कैरी करना है, पोर वाटर प्रेशर नहीं ही सारा का सारा जो स्ट्रेस आना है वो कैरी करना है. तो अनड्रेन्ड अनकंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन विल नॉट टेक प्लेस इफ यू आर नॉट अलाउइंग द पोर वाटर प्रेशर एक्सपेल आउट फ्रॉम द सोइल मीडियम. अगर पानी बाहर ही नहीं हो रहा है, पहली बात हमारे पास मीडियम, मैंने दो चीज़ें आपको पहले ही बताई क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर होगा,
दूसरा पोर वाटर प्रेशर, और दूसरा आपका क्या हो, सोयल सॉलिड की वजह से आ रहा है। अब दोनों में से इन दोनों ने स्ट्रेसेस कैरी करने हैं, क्योंकि सेचुरेटेड सोयल है तो आपने ड्रेन आउट होना अलाउ ही नहीं किया हुआ इन दो बोथ द स्टेज, in the stage first confining pressure stage and the second is your deviator stage। इन दोनों के अंदर आपने अलाउ नहीं किया कि पानी बाहर निकले इन फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। तो सारा का सारा जो लोड आ रहा है वो अल्टीमेटली कैरी कर किसने करे रखना है, वो सारा का सारा लोड है वो सारा का सारा पोर वाटर ने कैरी करते रखना है। तो कंसोलिडेशन होना नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनकंसोलिडेशन अनड्रेन्ड टेस्ट। ठीक है, क्ले सोइल के लिए होता है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस होती है और फास्ट लोडिंग जिसमें होती है, लाइक जैसा कि मैंने एग्जांपल ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट इज कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। Consolidated undrained test, by the name you can make it the short form, that is CU test. In this test expulsion of pore water is permitted in the first stage। पहली जो confining pressure stage है over which the expulsion of pore water pressure is permitted, means allowed to expel out the water from there, which takes, जो ऐसा होना है उस प्रोसेस में 24 घंटे ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं, बट नॉट इन द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज के अंदर पोर वाटर प्रेशर इज नॉट अलाउड, इट इज कम्प्लीटेड इन अप्रोक्स 2 आवर्स। जो पहला जो लोड आपने डाला उसकी वजह से जो इनिशियली लोड डाला आपने, जो पानी को आपने एक्सपेल आउट स्टार्ट कर दिया, तो आपके पास इस केस में मैं कह सकता हूँ पोर वाटर प्रेशर अगर एक्सपेल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ स्ट्रेसेस का पार्ट है यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस की फॉर्म में आएगा। ये कुछ आइडिया यहाँ पे हमें डायरेक्टली मिल जाता है। तो जो स्ट्रेसेस निकल के आएंगे, जो स्ट्रेंथ निकल के आएगा, which definitely comes out in the form of effective stresses। It is completed in approx 2 hours। अब ऐसा नहीं है कि ये बार बार आपने सैंपल निकालना है, पहली स्टेज पूरी हो गई तो दूसरी, कंटिन्यूस टेस्ट है, कंटिन्यूसली आपका परफॉर्म होना है उसी के अंदर ही। ठीक है, it is suitable against failure of earthen dams which may occur due to the sudden drawdown of water table। अब ये कहाँ suitable होगा, it is suitable against failure of earthen dam। earthen dam आपको पता है कि किससे बने होते हैं, earthen मटेरियल के साथ, soil medium मटेरियल के साथ बने होंगे, which may occur ड्यू टू, जो फेलियर हो रहा है किस वजह से हो सकता है, सडन ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर टेबल। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके से वाटर टेबल आप सोच सकते हो कि ग्राउंड का अंडरग्राउंड वाटर टेबल की बात कर रहे हैं या वाटर जो रिटेन किया हुआ है अर्दन डैम ने उसकी बात। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेन्ड वाटर की। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपने सडन गेट आपने ओपन किया और ड्रॉ डाउन हुआ वाटर का, उस टाइम में भी वहाँ पे फेलियर के चांसेस रहते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है, राइट। तो सडन पहले सीयू जो आपका प्रेशर कैरी किया जा रहा था, जो वाटर का लेवल था इनिशियली बिफोर ओपनिंग द गेट्स, ठीक है, तो आपका अलग लेवल था, उसके बाद में जैसे ओपन किया तो ड्रॉ डाउन हुआ वाटर में, ठीक है, सडन ड्रॉ डाउन की वजह से भी वहाँ पे फेलियर के चांसेस बन जाते हैं। दैट इज द कंडीशन इन द प्रैक्टिकली देयर वी कैन परफॉर्म और रिलेट दिस टेस्ट ओवर देयर। थर्ड है कंसोलिडेटेड ड्रेनेज टेस्ट, CD टेस्ट। इट इज मैक्सिमम टाइम टेकिंग टेस्ट, सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा। द रेट ऑफ लोडिंग इज वेरी स्लो, इट मे टेक्स फ्यू वीक्स, जनरली 2 वीक्स फॉर फाइन क्ले। अब ये जैसा ही टाइम की बात आ जाती है तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ तो ये आनी चाहिए कि टाइम टेकिंग क्यों है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो क्ले का क्या इश्यू क्या होता है, डेफिनेटली वी नो दैट पोर वाटर प्रेशर को अगर बाहर निकालना है तो क्या चीज़ें आपकी पर क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, ओबियसली स्ट्रेसेस जो अप्लाई कर रहे हैं वो। दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो हमारा है परमेबिलिटी, जिसकी परमेबिलिटी ज़्यादा, लाइक सेंड, हमें पता है कि कंसोलिडेशन सेंड जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लाइक ग्रेवल्स और आपके क्ले मींस कोर्सर पार्टिकल्स हैं, उसका कंसोलिडेशन इनिशियली जल्दी से जल्दी हो जाता है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन वी आर जनरली नॉट कंसीडर फॉर द कोर्सर पार्टिकल्स, तो वो चीज़ें हमने ऑलरेडी देखा हुआ। तो फाइन क्ले है जो आपकी क्लेई पार्टिकल है, दे हैव द टेंडेंसी टू सेटल डाउन वेरी वेरी स्लो बिकॉज परमेबिलिटी इज वेरी लो, एक्सपेल्शन ऑफ वाटर विल नॉट टेक प्लेस इंस्टेंटली, it will take some time to get out from the pores, that's why it takes to perform this test, consolidation drained test यहाँ पे TST लिखना। सो कंसोलिडेशन भी हो रहा है और ड्रेन्ड हो रहा है। ड्रेन होने का मतलब पोर वाटर प्रेशर डेफिनेटली गेटिंग आउट फ्रॉम द पोर्स, और साथ ही साथ उसके साथ कंसोलिडेशन विल टेक प्लेस। तो ये यहाँ भी अब हमारे पास 3 टेस्ट मैंने बताए। तो पहला जो रिलेट कर रहा था वो किसके साथ कर रहा था, टोटल स्ट्रेसेस के साथ, बिकॉज सारा का सारा जो
स्ट्रेस आ रहा था, टोटल स्ट्रेसेस जो आ रहे थे ड्यू टू द अपर स्ट्रक्चर लोड और आइदर यू आर परफॉर्मिंग द टेस्ट और एक्सटर्नल मीन्स आप किसी भी तरीके से सोइल पे लोड डाल रहे थे, वो सारा का सारा लोड वहाँ पे किसने कैरी कर रहा था? वो पोर वाटर कर रहा था, बिकॉज यू आर नॉट परमिटिंग द वाटर गेटिंग आउट फ्रॉम द पोर्स। दूसरा टेस्ट था unconsolidated drain test. If you see consolidated undrained test, consolidation was taken place in the first stage, but sorry, drainage is happening in the first stage, but second में वो permitted नहीं था। तो consolidated undrained test, CU test, इसको consolidation is definitely happening in the second test, लाइक फाइन एंड बोथ। ये यहाँ पे आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस दोनों कंडीशन के अंदर एप्लीकेबल होगा, दैट आई विल लेट यू नो इन दैट। थर्ड जो बात कर रहे हैं हम, ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि जो ड्रेनिंग प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग है, एक्सपेल्शन ऑफ वाटर विल टेक इन द बोथ द स्टेजेस, ठीक है। इट इज़ सुटेबल फॉर सेचुरेटेड सैंड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोई भी कंडीशन हो, कैन आल्सो बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ क्ले आल्सो। ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप देख रहे हो उस टाइम हम क्ले भी देख सकते हैं। नोट, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड। अनड्रेन्ड एक फोर्थ टेस्ट भी है जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया था, उसका रीज़न अभी बता देता हूँ। अनकंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड। अब ये अनकंसोलिडेशन ड्रेन्ड टेस्ट का क्या क्यों नहीं है, इसका मतलब देखते हैं। परफॉर्म्ड प्रैक्टिकली एज कन्फाइनिंग प्रेशर एक्टिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अब अनकंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेशन हो ही नहीं रहा वहाँ पे, तो जो कन्फाइनिंग प्रेशर है वो बहुत लंबे टाइम तक आपको लगाना पड़ेगा इन द फर्स्ट स्टेज। इट इज़ नॉट कंसोलिडेटिंग द सोइल, जो कि अनकंसोलिडेट ही नहीं कर रहा है तो पानी तो बाहर निकलेगा ही नहीं। सो देन इट कांट बी ड्रेन इन स्मॉल पीरियड ऑफ shear लोडिंग, तो थोड़े से shear लोडिंग की वजह से इट कैन नॉट बी ड्रेन्ड आउट। सो अनकंसोलिडेशन होने की वजह से ये टेस्ट किया ही नहीं जाता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबली इन द ऑल द प्रैक्टिकल वर्क्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस जो अभी तक हमने देखा उसको समराइज करके एक टेबल में लिखा हुआ है। Drainage condition, we have two stages. One is confining stage before the shear, deviator stage after the shear applying, means that stresses are applying. Time required for each the test that we just seen. Unconsolidated drained, unconsolidated undrained था ना initially. First was unconsolidated undrained UU test. It takes 5 to 15 minutes. Drainage is not allowed in both the cases, both stages के अंदर। Consolidated undrained test, that is the second test, it takes to 24 hours for first stage, for second stage it takes around 2 hours. In the first stage draining is allowed, in the second stage drainage is not allowed. Consolidated drainage it takes 2 weeks, और जनरली आपको मैंने बताया क्ले के लिए भी कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म लोडिंग, और फॉर लॉन्ग टर्म लोडिंग इज देयर, इन दैट केस यू कैन परफॉर्म द फॉर क्ले पार्टिकल्स और फाइन क्लेज आल्सो। तो ड्रेनेज इज अलाउड इन द बोथ द केसेस। So this is the just brief that we just discussed in the last slides, ठीक है। तो कुछ आइडिया इसके बारे में आपको यहाँ पे ब्रीफ आउट किया गया है कि अगर टेस्ट के बारे में पूछा जाए। नेक्स्ट जो पैरामीटर हमने देखा है कि फर्स्ट टेस्ट में क्या मिलेगा, सेकंड में हमें क्या फाइंड होगा और थर्ड में हमें क्या फाइंड आउट होगा, ठीक है। shear stresses पैरामीटर डिटरमाइंड आफ्टर परफॉर्मिंग, फर्स्ट वाज CU एंड phi-u। जैसा कि मैंने बताया CU और phi-u आपको क्या वैल्यू थी, CU and phi-u, these are the total stress parameters. Cu is the total cohesion, or phi-u is total friction angle, or you can say related to total stresses. CCu and phi cu and C dash cu means इस दूसरे जो टेस्ट हम कर रहे हैं अनकंसोलिडेशन ड्रेन्ड टेस्ट, in that case we get the value into the form of total stress as well as in the effective stresses। और जो लास्ट था CD एंड QD मीन्स ड्रेन्ड कंडीशन के अंदर, जो ड्रेन्ड आपका था दोनों केसेस। थर्ड वन इज CD टेस्ट विच इज कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। तो जो पैरामीटर है उसी के सब किट डाल के आपको मिल जाएंगे, दैट इज CD एंड phi-d मीन्स कंसोलिडेशन कोहेजन in the drained condition and friction angle in the drained condition. Since more times is required for CD test, CU test is the one usually preferred to determine the effective stress parameter. CU test. But what does it CU test means? Consolidation and drain test. मतलब second one. The second one which we are getting
the value. CU test, not the UU. Effective stress, if you want to calculate, you have to perform consolidation undrained test. Do not perform unconsolidated undrained test. अगर आपको जल्दी और फास्ट रिजल्ट चाहिए और ये कंडीशन आपके पास है, in that case you can perform unconsolidated undrained test. Otherwise, in the most practical work, because we need to relate the values into the effective stress, you have to perform consolidated undrained test. These are the three tests generally performed. Fourth one I just explained to you, but we are not consider that. Now the thing is how to measure the shear strength. Practically आपके पास soil specimen होगा obviously, but what is the measurement criteria? Basically you need to perform the test into the laboratory. So we have two tests, direct shear stress and triaxial shear stress. तो इसके वीडियोज है दैट आई विल शेयर इनटू योर गूगल क्लासरूम, और लिंक आई विल शेयर विद यू इन द गूगल क्लासरूम. यू कैन सीन फ्रॉम देयर हाउ द टेस्ट आर परफॉर्म. अब उसको थियोटिकली आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, और प्रैक्टिकली किस तरीके से करना है, कैसे किया जाता है, दैट आई विल शो विद द हेल्प ऑफ वीडियोज. यू कैन रेफर दोस एंड गेट आइडिया हाउ एक्चुअली दे आर परफॉर्म. So measurement of shear strength. So measurement of shear strength can be done by any of the following methods. So there are two tests, direct shear stress. वैसे तो there are number of tests, but we generally do the direct shear stress and triaxial shear test. Direct shear test. The test is called shear box test also, and one of the oldest methods or oldest test which is available to check the shear strength. The soil specimen be tested in is confined in a metal box. तो जो soil specimen हमने टेस्ट करना है, आपने soil कहीं से आपकी साइट से लिया या आपने फील्ड से कहीं से लिया, उस सोइल को एक मेटल बॉक्स के अंदर कन्फाइन करना है, मतलब डालना है. वो स्क्वायर साइज का हो सकता है, सर्कुलर साइज का, इन क्रॉस सेक्शन हो सकता है. स्प्लिट इनटू टू हाफ्स हॉरिजॉन्टली, जो कि दो हिस्सों में अलग अलग हो सकता है. ठीक है, दो भागों में हॉरिजॉन्टली इट कैन बी स्प्लिट आउट. Of the specimen is fully or partially saturated. It could be fully saturated or partially saturated. Perforated metal plates or pour stone are placed above and below the specimen to allow the free drainage. तो परफोरेटेड प्लेट्स हो सकती हैं, परफोरेटेड स्टोन्स यू कैन ले ओवर द, कि हम दोनों साइड से बोथ साइड ड्रेनेज वी कैन अलाउ, कि जो एक्सपेल्सन ऑफ पोर वाटर प्लेस टेक्स प्लेस इन द बोथ साइड. सॉलिड मेटल प्लेट्स आर यूज्ड इफ स्पेसिमन इज ड्राई. अब अगर सॉलिड प्लेट्स आप यूज करोगे कब, जब ड्राई सोइल होगी. तो ड्राई सोइल होने का मतलब देयर इज नो पोर वाटर प्रेशर. फुली ड्राई है तो उस टाइम में आपके पास एक्सपेल्शन ऑफ पोर वाटर तो है नहीं, तो इन दैट केस यू कैन यूज द सॉलिड मेटल प्लेट. सो दीज आर द प्रोसीजर और थिंग्स वी हैव टू यूज. which type of soil is available, what are the condition you required, according to that you have to choose the test requirement, right? A pressure pad is placed on the top, on the entire specimen is placed the trolley. अब जो सारा सिस्टम प्रिपेयर करने के बाद आपने प्रेशर पैड अप्लाई करना है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, फोटो भी है मेरे पास. वन हाफ ऑफ बॉक्स इज फिक्स्ड, जो ऊपर का पोर्शन होगा वो फिक्स होगा, एंड अदर हाफ इज पुश्ड और पुल्ड रिलेटिव टू वन ऑफ द फिक्स्ड. अब ऊपर का फिक्स होगा, नीचे वाला आपका रिलेटिवली आप बैक और फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, राइट. A vertical load is applied to the specimen. ऊपर की तरफ से हम वर्टिकल लोड अप्लाई करेंगे थ्रू ए स्पेसिमेन थ्रू ए स्टैटिक वेट, जो कि हैंगर के साथ होगा. द सॉलिड इज शेयर्ड ग्रेजुअली, जो कि सॉलिड है, लोड आपने कंटिन्यूसली जैसे अप्लाई किया, सिमिलर लाइक दिस, शेयर्ड आउट होंगे ग्रेजुअली बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल. तो एक वर्टिकल लोड अप्लाई हो रहा होता है, एक हॉरिजॉन्टल अप्लाई हो रहा होता है. वर्टिकल आपका परमानेंट लोड रहेगा एक तरीके से, ठीक है. अलग अलग सोइल स्पेसिमेन के लिए यू कैन चेंज दैट वर्टिकल लोड, और उसके अलोंग एक पॉइंट्स हम कैरी करते रहते हैं, वो अभी मैं बताता हूँ. लेट्स सी. Solid is shear gradually by applying a horizontal force which cause the two halves of box to move related to it. जो horizontal force है, जो आपके जो ग्रेजुअल बॉक्स था, जो हाफ ऑफ बॉक्सेस थे, वो एक दूसरे से मूव करने को अलाउ करेंगे. मतलब वो लोड आपको अप्लाई करेगा, एक पोर्शन फिक्स रहता है, दूसरा उसके साथ स्लाइड करेगा. तो shear strength हम वही तो shear strength हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है. द shear
इज नॉर्मली अप्लाइड एट कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन। दे यहाँ पे दो कंडीशन होगी, एक कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन होता है, एक कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेस होगा। कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन मतलब जो डिफॉर्मेशन हो रही है वो कांस्टेंट रह रही है पर यूनिट किसी भी टाइम के अंदर। अगर 1 मिनट में मैं कहूँ भी आप डेल्टा एल बाई एल की अगर मैं वैल्यू निकालूं कि अगर आप 1 mm मूव कर रहे हो एक मिनट के अंदर, तो इसी तरीके से आप कंटिन्यूसली उसको उसी रेट के साथ होता है। और कांस्टेंट स्ट्रेस के साथ अगर कहूँ तो ग्रेजुअली आप टाइम लोड है वो कांस्टेंट चल रहा है रेट के साथ, टाइम के साथ। 4 मिनट में 4 किलो न्यूटन 1 मिनट में लग रहा है, तो नेक्स्ट 1 मिनट में भी 4 ही लगेगा, तो टोटल टू आफ्टर 2 मिनट्स यू हैव 8 किलो न्यूटन लोड। तो लाइक दिस यू कैन यूज। तो बस बेसिकली इन दिस वी आर गोइंग टू शेयर इज नॉर्मली अप्लाइड एट कॉन्स्टेंट रेट। तो स्ट्रेन ऑफ रेट के हिसाब से हम यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर लोड इज मेजर्ड बाय द मीन ऑफ प्रूविंग रिंग। एक प्रूविंग रिंग होता है, उसके हिसाब से हम इसका मैग्नीट्यूड हम चेक करते हैं कि कितना आपने लोड आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। द शियर डिफॉर्मेशन एज वेल एज वर्टिकल डिफॉर्मेशन, डी एच, जो कि शियर और वर्टिकल दोनों हम मेजर कर लेंगे, आर मेजर ड्यूरिंग द टेस्ट विद द हेल्प ऑफ डायल गेजेस। दोनों साइड होते हैं, उसके हिसाब से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफॉर्मेशन दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। और वर्टिकल डिफॉर्मेशन से हम एक्सियल स्ट्रेन निकाल लेते हैं, शेयर के साथ हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दोनों की साइड से यूज करके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा सा प्रोसीजर था। अब हम डायग्राम को देखते हैं। अब ये प्रोसीजर जो हमें अभी देखा है, इसका वीडियो देखोगे तो यू विल गेट आइडिया। इट्स नॉट दैट इजी कि आप जाते ही वहाँ पे स्पेसिमेन डाला और आपका टेस्ट होगा। इट्स नॉट दैट इजी टेस्ट, ठीक है। इट विल टेक टाइम और प्रोसीजर इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड। प्रोसीजर इज रिपीटेड ऑन 4 to 5 स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू ए डिफरेंट वर्टिकल लोड। आपने 4 से 5 टेस्ट स्पेसिमेन लेने हैं सेम सोइल स्पेसिमेन के, एक जगह से जो आप लेके आ रहे हो उसको अलग अलग स्पेसिमेंस। जैसे कि आपको पता है कंक्रीट में हम अगर टेस्ट करते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिमेन वाज 3। तो सिमिलर हेयर आल्सो 4 to 5 स्पेसिमेन यू हैव टू टेस्ट इट फॉर डिफरेंट वर्टिकल लोड्स। जो आपने स्टैटिक लोड डाला हुआ था उसकी वैल्यू आपने वेरी करनी है। कभी कुछ वैल्यू रखा, कुछ डिफरेंट वैल्यू, सेकंड डिफरेंट वैल्यू, थर्ड डिफरेंट वैल्यू, एंड देन अप्लाई द लोड एंड चेक द shear strength over there. Normal and shear stresses on the failure plane are obtained by dividing the normal force and shear force by the nominal area of the specimen. नॉर्मल और shear stress आप निकाल सकते हो। वहाँ पे क्या होगा, जो आपका एरिया, इनिशियली एरिया जो आपका स्पेसिमन का है उसको कैलकुलेट कीजिए, जितना लोड आपने कैलकुलेट आया है डायल गेज में उससे डिवाइड कर दीजिए, वो आपकी नॉर्मल और shear stresses निकल जाती है। वैल्यू ऑफ shear stress एज फेलियर आर प्लॉटेड अगेंस्ट नॉर्मल स्ट्रेस फॉर द ईच टेस्ट। shear stress है अगेंस्ट नॉर्मल स्ट्रेस आप प्लॉट कर सकते हो, उसकी वैल्यू हम निकालें। अब निकालेंगे कैसे, दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन इन दिस। अब इसमें कोई चीज़ पूछनी होगी तो आप यू कैन आस्क लेटर। सो ये आपको डायग्राम है। तो दिस इज द नॉर्मल फोर्स, this is the dial gauge, this is also a gauge to measure the horizontal displacement. Similar, this is the vertical displacement measure sigma, and that is a normal stress which is normal force per unit area, force measurement meter, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स मीटर, ये आपके जो नीचे आपके रोलर लगे हुए हैं ये shear फोर्स लग रहा है, इस shear फोर्स की वजह से ये failure will take, this is the failure plane और shear failure over which the load is going to apply। अब ये हाफ ऊपर का हाफ है ये फिक्स रहता है, नीचे का हाफ है वो मूव कर सकता है, और दैट स्पेसिमन विल टीयर आउट इनटू द टू हाफ्स। तो shear stress है वो क्या आ जाएगी, T by A which is a force applied over there। The shear strength parameter C and phi are obtained from the line to be best fit। अब ये बेस्ट फिट लाइन क्या है और किस तरीके से C और phi हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट वी विल सी इन दिस। इससे पहले कि वो चीज़ें देखें कि हाउ टू फाइंड C और phi, फर्स्ट ऑफ ऑल सी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेस्ट, और then we will reach to the how to calculate C and phi values of direct shear test। डायरेक्ट shear टेस्ट हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग क्विक, एक तो जल्दी हो जाता है, इनएक्सपेंसिव एंड सिंपल टेस्ट इन केस ऑफ सैंड कंपेयर टू ट्राइएक्सियल। Otherwise it's not simple to the other any soil test like sand replacement method, code cutter method, उनसे थोड़ा सा easy नहीं होगा, but compared to triaxial it's very simple in case of sand। moreover the ease of preparation of test is also a plus point। तो प्रिपरेशन करना टेस्ट का स्पेसिमेन तैयार करना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क। अब नाउ however
suffers from many disadvantages. अब इसके disadvantages काफ़ी ज़्यादा है compared to its advantages. One, drainage condition cannot be controlled and pore water pressure cannot be measured. पहली बात, सबसे पहला अगर इफेक्टिव स्ट्रेस आपको निकालना है, इफ़ यू वॉन्ट एबल टू मेजर द पोर वाटर प्रेशर, देन हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, बिकॉज टोटल स्ट्रेस इफ वी गेट, even then by do not know the value of pore water pressure we can't calculate the effective stress, because even we cannot control the drainage condition also. This is the one and biggest disadvantage. Hence it is not for much use for fine saturated soil. तो fine saturated soil के लिए ये betterment नहीं है. When drainage condition plays an important role in influencing the shear strength. अब जहाँ अगर फाइन सोइल की बात करो तो वहाँ पे हमें पता है कि shear strength में पोर वाटर प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है, वहाँ पे ड्रेनेज कंडीशन का बहुत बड़ा रोल होता है. बिगेस्ट रोल दे आर गोइंग टू impart into the influence or into the shear strength property. Fine. This test is not recommended for condition other than the fully drained. अब ऐसा नहीं है कि प्रायर कि आप पार्शली सेचुरेटेड हो, ये आइदर फुली ड्रेन्ड कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होगा, तो दैट विल बी, कह सकते हैं कि इनिशियली इतना था और कम्प्लीटली उसको ड्रेन आउट कर दिया, देन वी कैन परफॉर्म दिस टेस्ट, और उसी के लिए रिकमेंड किया जाता है जनरली. एज ए रिजल्ट इट यूजफुलनेस इज लिमिटेड टू ओनली फ्री ड्रेनेज सॉइल. फ्री ड्रेनेज सॉइल कौन सी होगी? लाइक सैंड, वेयर इफेक्टिव स्ट्रेसेस पैरामीटर एंड shear strength आर टू बी डिटरमाइंड, जिसमें जल्दी से ड्रेन आउट हो जाता है. हमें पता है सैंड में क्या होता है, परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ड्रेनेज है वो जल्दी और कंप्लीटली और फुली ड्रेन होने के चांसेस विद इन 5 to 10 minutes विल टेक प्लेस. और ऐसा क्ले सोइल में नहीं होता है, तो जनरली दे आर नॉट गोइंग टू बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट. shear strength आर टू बी डिटरमाइंड इन दैट केस. द फेलियर प्लेन इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल इन दिस. अब जैसा कि अगर आपने इस फिगर को थोड़ा सा एनालाइज किया होगा, तो फेलियर प्लेन है ना, इसी लाइन के लॉन्ग ही आएगा. कोई एंगल हो सकता है, देर आर डिफरेंट प्लेन्स ओवर विच द सोइल इज वीक, बट यहाँ पे फेलियर प्लेन बिफोर द फेलियर वी नो दैट कि इट इज गोइंग टू बी फेल फ्रॉम देयर ओनली. टेस्ट के अंदर ऑलरेडी हमें ये चीज़ें पहले से ही पता है कि मेरा सोइल स्पेसिमेन है वो इसी प्लेन के लॉन्ग फेल करेगा. इवन देन पॉसिबिलिटी ऑफ इज देयर कि ये इस तरीके से भी फेल हो सकता है, आइदर इज देयर आर डिफरेंट प्लेन्स ओवर विच द सोइल स्पेसिमेन कैन फेल, बट ड्यू disadvantage of this test, because we know the failure is going to be take place into the horizontal plane, which we know before the test applied. Okay, which may be direction of weakest plane in the soil, और डेफिनेटली ये हो सकता है कि इसी प्लेन के लूँगा, बट इट्स नॉट कंपल्सरी ऑलवेज देयर इज ए ओरिजेंटल प्लेन ओवर विच द मटेरियल इज गोइंग टू बी फेल. ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता है. देयर आर स्ट्रेसेस कंसंट्रेशन एट द सैंपल बाउंड्री लीडिंग टू नॉन यूनिफॉर्म shear stress loading to the uniform shear stress distribution on the failure plane. अब क्या होता है, साइड का अगर आप स्पेसिमेन को देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, बाउंड्री के साथ जो कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेसेस है वो ज़्यादा होंगी कंपेयर टू द सेंटर, तो यो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो वो फेलियर के अंदर और फेलियर प्लेन मिलने में हमें इशू आएगा, या एरर की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है. क्यों? रजिस्टिंग इफेक्ट आ जाता है या फ्रिक्शनल इम्पैक्ट आ जाता है. किसी भी कंडीशन में आप ले सकते हो. ठीक है, तो बाउंड्री के साथ जैसे ही आगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, जैसे कि आपने फ्लूइड में भी पढ़ा होगा, बाउंड्री के साथ या जहाँ भी किसी भी तरीके का मटेरियल हो, जहाँ जहाँ बाउंड्री के साथ जो भी इम्पैक्ट आएगा, ऑलवेज देयर इज ए फ्रिक्शन रेजिस्टिव इम्पैक्ट और स्ट्रेस कंसंट्रेशन नियर बाय द बाउंड्री ऑफ द स्पेस. Failure of soil in this case takes place progressively from edges towards the center. एज से स्टार्ट होकर सेंटर की तरफ रीच करेगा, क्योंकि स्ट्रेस कंसेंट्रेशन भी है वो एजिस के साथ ही और बाउंड्री के साथ. द एरिया ऑफ स्पेसिमेन अंडर नॉर्मल एंड shear लोडिंग डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. एरिया अंडर स्पेसिमेन अंडर नॉर्मल एंड shear डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. जो इनिशियली जो बिफोर द टेस्ट स्टार्ट वो एरिया और बाद में जो एट द टाइम ऑफ फेलियर है वो सेम नहीं रहेगा. दैट एरिया इज नॉट गोइंग टू बी टेस्ट कांस्टेंट फॉर द ड्यूरिंग द टेस्ट. Hence, stresses are calculated on the basis of constant nominal area of specimen which are inaccurate. But हम क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस दोनों जो निकाल रहे हैं ना, वो निकाल रहे हैं एक्चुअल एरिया के बेसिस के ऊपर, जो हमने
जो क्यूब के बेस पे ही ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, बट एट द टाइम ऑफ टेस्ट जब फेलियर हो रहा है उसके अंदर वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, तो एक्चुअल स्ट्रेस हमें मिल ही नहीं पाता उस टाइम। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स आर नॉट नोन, प्रिंसिपल प्लेन का भी हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में। एट एवरी स्टेज ऑफ टेस्ट इट इज़ ओनली आफ्टर मोर, हर एक जैसे जैसे आपका ओरिजेंटल और ट्रांसवर्स लोड आप बढ़ाते चले जा रहे हो, स्पेसिमेन में फेलियर हो रहा है, और आपके जो प्रिंसिपल प्लेन्स हैं उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती चली जा रही है, तो हमें एक्चुअली उनकी पोजीशन ही नहीं पता होती कि वेयर आर दे एंड विच प्लेन्स आर द प्रिंसिपल प्लेन्स। इट इज़ ओनली आफ्टर मोहर फेलियर एनवलप इज नोन, अगर हमें मोहर एनवलप बनने के बाद द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैन बी डिटरमाइन। तो मोहर फेलियर एनवलप हम बनाएंगे, उसके बाद में हमें पता लगेगा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ देयर प्लेन्स। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देर इज रोटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स थ्रू, जैसे जैसे टेस्ट, अब जैसे आप देखो यहाँ से, अगर ये स्पेसिमन मान के चले, ये अपर हेड है, ये लोअर है, तो आपने इसको नीचे से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये फिक्स्ड है, ये बॉटम, तो ये जैसे जैसे आपके साथ चलेगा, ये प्लेन आपका क्या करता है, कंटिन्यूस रोटेट होता रहता है। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, द रोटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स थ्रू आउट द टेस्ट, ड्यू टू दिस द फील्ड लोडिंग सिचुएशन कैन नॉट बी सिमुलेट एक्यूरेटली इनटू द लैब। इसी वजह से जो फील्ड की जो एक्चुअली हमारी पोजीशन है वो हम रिलेट नहीं कर पाते ड्यू टू दिस डायरेक्ट टेस्ट के अंदर। अब इसके अंदर कैलकुलेट कैसे करेंगे, मोहर सर्कल कैसे बताएंगे और शीयर स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, उसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। मोहर सर्कल आपको पता लग गया कैसे ड्रॉ करते हैं, बट इसमें ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, इसमें जो कंडीशन पहले जस्ट आई डिस्कस अबाउट दिस उसी के बेसिस पे हम करते हैं। This is your vertical, this is your horizontal, this represent by tau, this is the normal stress over here. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिमेन के साथ टेस्ट परफॉर्म किए, मतलब अलग अलग टेस्ट के साथ, और इसकी वैल्यू, कोई पॉइंट यहाँ मिला, कोई पॉइंट हमें यहाँ मिला, कोई यहाँ मिला, और कोई, दे आर द रैंडम पॉइंट्स, एक लाइन में नहीं मिलेंगे, दे आर डिफरेंट पॉइंट्स। तो अब आपने क्या करना है, एक बेस्ट फिट लाइन जो कि मोस्टली जितने भी टेस्ट होंगे उनसे होते हुए गुजरे, मतलब नियर बाय भी हो, जैसा कि आप इसमें देखोगे तो दिस लाइन इज बेस्ट फिट लाइन, जो कि मैंने इस थ्योरी में जब रीड कर रहे थे एट दैट टाइम आल्सो आई टोल्ड यू अबाउट दैट। ठीक है। बेस्ट फिट लाइन आपने पास करनी है, जो ये लाइन हमारी क्या होती है, मोहर कुलम्स फेलियर एनवलप होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, मोहर कुलम फेलियर एनवलप को, और जो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा वो हमें शियर स्ट्रेंथ के बारे में बता देगा। चलो वो बात की बात। अब इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा, ये मेरा एंगल क्या होता है, फाई होता है। वर्टिकल जो इंटरसेक्ट है ये मेरा क्या है, सी है, कोहेजन है। इस पॉइंट के साथ अगर मैं टेंजेंट पे देखूं तो ये मेरा पॉइंट क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा है नॉर्मल स्ट्रेस एट फेलियर प्लेन एट फेलियर टाइम ऑफ फेलियर, शेयर स्ट्रेस एट फेलियर प्लेन एट टाइम ऑफ फेलियर। अब आपने क्या करना है, ये लाइन बनाने के बाद हमें ये नहीं पता है कि सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 3 की वैल्यू क्या है, हाउ यू कैन लोकेट दिस, हाउ टू ड्रॉ द मोर सर्कल, ये सब से चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मोर सर्कल ड्रॉ करना इन दैट केस इज़ वेरी डिफिकल्ट, ईजी नहीं है। तो करोगे कैसे ड्रॉ, इशू वो आ जाता है। तो बच्चे सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें ये पता है कि जो फेलियर प्लेन पे हमें मिलता है, मोहर सर्कल टेंजेंट होता है ना कि नहीं होता है, फेलियर प्लेन है वो मोहर सर्कल के टेंजेंशियली होके निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यस इट विल पास फ्रॉम द टेंजेंशियल पॉइंट ऑफ द मोहर सर्कल। फेलियर एंड ऑब्जर्व जितने भी हमने अभी तक देखे हैं, दे आर पासिंग फ्रॉम द टेंजेंशियल टू द मोहर सर्कल। अब ये हमें पता लग गया, अब टेंजेंशियल का पता लग गया, मतलब हमने मोहर सर्कल वो ड्रॉ करना है, या वो मोहर सर्कल एक पॉइंट को अगर उठाऊं, अगर इसके साथ अगर मैं बात करूं या इससे पास करना चाहूं, तो जो मेरा मोहर सर्कल होगा वो डेफिनेटली गोइंग टू बी टेंजेंट टू द दिस लाइन ओनली। और इस पॉइंट के ऊपर कितने मोहर सर्कल, एक मोहर सर्कल में इस पॉइंट के साथ, बिकॉज वन पॉइंट इज देयर। हाँ, डिफरेंट के लिए जितने नंबर ऑफ आप पॉइंट लोगे उतने आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इस पॉइंट के टेंजेंट मैं ड्रॉ करूंगा। अब कैसे ड्रॉ करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर लेके, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस, ट्रायल एंड एरर मेथड के साथ। जैसे ही वो आपका सर्कल बनेगा टेंजेंट लाइन के साथ, मतलब इस पॉइंट को टेंजेंट, बिल्कुल टेंजेंट के ऊपर बन जाएगा, वो मेरा मोहर सर्कल एक्यूरेटली हुआ। ये ट्रायल एंड एरर मेथड पे ड्रॉ होता है, बनाते चले जाइए, हो सकता है 10 बनाने पड़े, 15 बनाने पड़े, हो सकता है आप 1 और 2 में कंप्लीट कर लो, दिस इज द ट्रायल एंड एरर मेथड।
ऐसा मोहर सर्कल ड्रॉ करना है जो इस पॉइंट के टेंजेंट हो, और ये लाइन टेंजेंट हो मोहर सर्कल के साथ, ठीक है। ये फेलियर एनवलप, तो ये पॉइंट मिला, तो ये मेरा इस पॉइंट के साथ ये मोहर सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। पहले ये फेलियर एनवलप बनेगा, ये पॉइंट मार्क होंगे, ये पॉइंट मार्क होने के बाद, क्योंकि ये हमें सिग्मा एफ एफ और टाउ एफ एफ हमें पता लग जाएगी, बिकॉज आई नो नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा है, वो रीडिंग हम गोज में मेजर कर लेंगे, एरिया हमें ऑलरेडी पता है। इसी तरीके से एफ का भी वैल्यू पता लगेगा, एरिया पता है, वो पॉइंट हमें मिल गए, ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के पॉइंट मिल गए। फिर आपने एक फेलियर एनवेलप लाइन ड्रॉ किया, अब उससे होता हुआ एक टेंजेंशियली एक मोहर सर्कल यहाँ पे एक है, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के आप निकाल सकते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये मोहर सर्कल ड्रॉ किया। अब आपके पास हमें पता है कि फेलियर प्लेन है वो क्या है, प्री डिफाइंड है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तो निकालनी क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड, ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो हमें, अगर आपको पता होगा, पोल हमने लोकेट किया था, इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास हाउ टू डू द पोल, लोकेशन ऑफ पोल। लोकेटिंग ऑफ पोल पे हमने क्या देखा था, ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर आपके प्रिंसिपल प्लेन और फेलियर से अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, मतलब कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर, तो वो क्या करती थी, मीट कर रही थी उस पॉइंट के ऊपर, यही था ना हमने पढ़ा था। तो अब ये हमारा फेलियर लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, इस पॉइंट से एफ से अगर मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ तो ये मेरे मोहर सर्कल को कट कर रहा है, तो ये मेरा पॉइंट आ गया पी। और ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, तो पी पॉइंट क्या है, पोल पॉइंट है, जिसपे हमारा, अगर मैं रिजल्टेंट सेस जो कि शियर स्ट्रेंथ पॉइंट है हमारा, इससे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो हमारे सर्कल को एक पॉइंट पे कट करेगी, जो कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ फेलियर होगी, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ फेलियर उसको ड्रॉ करना है, वो हमारे मोहर सर्कल को किसी लाइन पे कट करेगी। तो ये मेरा आ जाता है फेलियर प्लेन। और इसी प्लेन के ऊपर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ पैरेलल टू द हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, हमें ये नहीं पता क्या है, हमें ये जरूर पता है मोहर सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट मुझे पता लग जाएगा, दिस एनी फर्स्ट पॉइंट इज सिग्मा 3 एफ एंड दिस वन इज सिग्मा 1 एफ। अब यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट से करते हुए इस पॉइंट को मिला दूँ तो ये मेरा क्या आएगा, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। पोल से माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को अगर मीट करता हूँ तो ये मेरा आ जाता है माइनर प्रिंसिपल प्लेन, और ये मेरा आ जाता है मेजर प्रिंसिपल प्लेन, जो कि पोल से कनेक्ट होता हुआ मेरी मेजर प्रिंसिपल प्लेन स्ट्रेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये लाइन बन जाती है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा लाइन है, ये इसके साथ है प्लेन है, ये इसके साथ, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ। इसमें हमने रिवर्स किया है, ये सबसे पहले आपका फेलियर एनवलप लाइन बनेगी, फिर आपका मोहर सर्कल बनेगा, फिर आपने फेलियर प्लेन के लॉन्ग एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एक आपके मोहर सर्कल को कट करेगी एक पॉइंट पे, और वो हमारा पॉइंट होगा पोल। उस पोल से आपने, इससे पहले आपने मोहर सर्कल ऑब्वियसली ड्रॉ करना है, मोहर सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट से, जिस एफ पॉइंट पे जहाँ पे आपकी नॉर्मल और शीयर स्ट्रेस आपके ऑर्डिनेट्स हैं, उस पॉइंट से आपने एक ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू द फेलियर लाइन और फेलियर प्लेन के साथ। उस ये पॉइंट हमें लोकेट हुआ मोहर सर्कल के ऊपर, इसको बोला गया पोल। और पोल से पैरेलल अगर पॉइंट से लाइन ड्रॉ करें टू द बी, और यहाँ पे हम कह सकते हैं माइनर प्रिंसिपल, ये मेरा जो प्लेन मिलेगा, दिस प्लेन इज माइनर प्रिंसिपल प्लेन, दिस इज माय मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो इसको मैं होल्ड करते हुए, इसमें अगर किससे ड्रॉ किया ये किसी ने पूछना हो या किस तरीके से है, प्लीज लेट मी नो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अदरवाइज chat is on, you can ask your question, how to draw this. So I am taking the question of Raghav, which is, if we compact and consolidate a ground, then how do we know that we have done enough compaction? Raghav, consolidation is not going to be taken place. Compaction के लिए generally जो parameters होता है, you have to, if you are constructing a soil or building anyway, so you have to take the sample and test them. You are getting required value or not, you have to do that only. Otherwise, by doing a lot of work or practically, you will see कि this much of requirement is there. By experience you can get idea about that.
अदरवाइज इन द जनरल टर्म्स, जो कि आप बिल्डिंग्स या किसी स्ट्रक्चर में करते हो, तो उसमें क्या करते हैं हम जनरली, एक नॉर्मल वे होता है, जो प्रोसेस होता है, हम नीचे से डिग आउट करते हैं जो ऊपर की सोयल होती है, उसके बाद में नीचे की सोयल को कंपैक्ट करते हैं, देन सोइलिंग करते हैं विद द कोर्सर पार्टिकल, एंड देन कंपैक्ट देम, एंड देन उसके बाद में एक कंक्रीट की या पीसीसी की लेयर हम बिछा देते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसीजर होता है जनरल वे ऑफ, इफ स्मॉल कंस्ट्रक्शन इज देयर। अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो देर इज अ डिफरेंट वेज, कंपैक्शन भी किया जाता है, इन दैट केस पाइलिंग वाज यूज। अगर काफ़ी हाई राइज स्ट्रक्चर है तो ये डिपेंड करेगी काफ़ी कंडीशन के ऊपर, आप ऐसा। और जनरली जो कि आपकी एम्बैंकमेंट के अंदर कंपैक्शन की बात करूँ, तो यू हैव टू परफॉर्म द टेस्ट टू चेक द कि रिक्वायर्ड कंपैक्शन इज डन और नॉट। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, इफ़ यू हैव फर्दर क्वेश्चन यू कैन आस्क। यस राघव, इफ यू हैव एनी ओके फर्दर सर। क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर बस वही क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल सर, एक हम नया प्लॉट लिया जैसे, हाँ हाँ। तो उसको हम कितने दिनों तक या मतलब कितने आवर्स तक कॉम्पैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्चुअली एक्चुअली रैमर? इट्स नॉट डिपेंड कि आप उसको 2 दिन कर रहे हो या कितने आवर्स के लिए कर रहे हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स किस लेवल पे है या आप किस तरीके का स्ट्रक्चर आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, कंसोलिडेशन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, वो आपका होगा ही नहीं, आप 1 दिन करिए 2 दिन करिए, उसमें टाइम लगता है एक्सपेंशन ऑफ वाटर में। हाँ, कंपैक्शन यू आर डूइंग, जनरल जो प्रोसीजर होता है वो, जो आपकी अकॉर्डिंग टू द कोड और स्पेसिफिकेशन ऑफ गाइडलाइंस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसी के बेस पे किया जाता है। और अदरवाइज बाय द एक्सपीरियंस यू विल सी कि विच टाइप ऑफ सोइल इज देयर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू कम्पैक्ट द सोइल। अभी ये प्री डिफाइंड नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा वो डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, और उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका उस तरीके का स्ट्रक्चर ही नहीं बना रहे और आप उसको कम्पैक्ट करते ही चले जा रहे हो, वो डजेंट मैटर हार्डली, उसमें कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। अब किस तरीके का स्ट्रक्चर आप बनाने की कोशिश कर रहे हो उसके ऊपर मेनली वो डिपेंड करेगा, क्या सोइल है, क्या रिक्वायरमेंट ऑफ कम्पैक्शन है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पे काम। इसका डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा आंसर नहीं है कि मैंने, हाँ जी 5 दिन चला दीजिए जी ओके हो जाएगा, उस पर भी ये जरूरी नहीं है कि वो 5 डेज में होगा नहीं होगा, डिपेंड, अगेन देर आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, एनीथिंग एल्स? चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये आपको डायग्राम, आई थिंक आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। पहली चीज़ मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, सिग्मा एफ एफ और टाउ एफ एफ हमें टेस्ट से डायरेक्टली मिल जाएंगी, उसके बेस पे हमने फेलियर एनवलप बना लेना है, फाई हमने कैलकुलेट कर लेना है। फाई क्या होगा? स्लोप ऑफ दिस फेलियर एनवलप, जो कि स्लोप होगा, स्लोप आप निकाल लोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फाई। और सी की वैल्यू जो आपका वर्टिकल इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, जैसे जैसे आपके पॉइंट आते चले जाएंगे वैसे वैसे आपने इसको ड्रॉ कर देना और पॉइंट को मिला देना है, वर्टिकल इंटरसेक्ट होगा वो सी होगा। अब उसके बाद में आपको एक पॉइंट मिला जिसके थ्रू आपने मोहर सर्कल ड्रॉ करना है। ये अब ट्रायल एंड एरर मेथड है, बार बार ड्रॉ करना है, जो सबसे ज़्यादा आपके टेंजेंट पॉइंट पे मिलेगा वो आपका मोहर सर्कल होगा, जिस पे सिग्मा 3 और सिग्मा 1 की वैल्यू ड्रॉ कीजिए। फिर उस पॉइंट से आपने फेलियर प्लेन के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो आपको सर्कल को कट करेगी किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट हमारा हो जाता है पोल पॉइंट। और उस पोल पॉइंट से आपने लाइन ड्रॉ मिला देनी है आपके मेजर और माइनर प्रिंसिपल को, और वो जो लाइंस मिलेंगी वो लाइंस आपकी मेजर प्रिंसिपल प्लेन होगा और एक माइनर प्रिंसिपल प्लेन होगा, और उन पे जो स्ट्रेसेस लग रही होंगी वो आपकी क्या होगी? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्राइक्सियल टेस्ट डेवलप्ड बाय ए कैसे ग्रेंडे, जो कि कैसे ग्रेंडे आपकी पहले भी आपने परफॉर्म किया था। गिवन द लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बारे में उन्होंने बताया। दिस टेस्ट इज़ वेरी एक्यूरेट एंड इज़ जनरली यूज फॉर रिसर्च पर्पजेज। जो रिसर्चर होते हैं या पीएचडी स्कॉलर्स या एमटेक स्कॉलर्स, जनरली दे डू, और एनी अदर रिसर्च वर्क, they generally used to perform the test with the triaxial test.
Why so? Because it's a very accurate and versatile test for और different condition के लिए आप perform कर सकते हो. Drainage condition can be controlled depending upon the type of soil. ड्रेनेज कंडीशन वी कैन कंट्रोल डिपेंडिंग अपॉन किसी भी तरीके की सोयल है उसके बेस पे हम ड्रेनेज कंडीशन को कंट्रोल आउट कर सकते हैं. पोर वाटर प्रेशर मेजर्ड कैन बी डन एक्यूरेटली. वी कैन मेजर द पोर वाटर प्रेशर एक्यूरेटली हियर. We have Bishop apparatus. We can connect that and calculate the pore water pressure value. Volume change can be measured. Again, volume changes in the soil we can measure. There is no rotation of principal plane because specimen is going to be fixed. So it's not going to be changed. Principal plane remain the fixed there. The failure plane is not forced or predetermined. In the last case, if you see, failure plane was fixed. That was horizontal. और वो पक्का हमें पता था कि वो fix होने वाला है. But here it is not going to be fixed or permanent. ठीक है, ये जो ही मिलेगा हमें जहाँ पे वीकेस्ट प्लेन होगा और फेलियर जहीं पे होगा वहाँ पे वीकेस्ट सेक्शन और वीकेस्ट प्लेन ऑफ फेलियर रहेगा. Failure plane is not forced to or predetermined that I just explained. The specimen can fail on any weak plane or can bulge also. तो इकट्ठा भी हो सकता है और specimen fail along the weak plane जहाँ सबसे weakest section उसको मिलेगा along that it's going to be fail. Stress distribution is uniform on the failure plane. जो failure plane होगा उसके stresses हैं वो सारे के सारे uniform रहेंगे. Like in the last case they are non-uniform over there. The test is carried out on a cylindrical specimen having length by diameter ratio is 2. Generally 76 into 38 mm होता है उसका cylindrical dia और maybe 100 into 50 mm size is used generally. The cylindrical specimen is placed on saturated porous disc resting on the pedestal of triaxial cell. जो कि अभी मैं इसका फिर से diagram है आगे. I will let you know. The specimen is encased in a rubber membrane and sealed to the pedestal at the bottom and the top. ये देखिए, this is the actual diagram. This is the cylindrical vessel. ठीक है, इसके अंदर आपका स्पेसिमेन हमने मेम्ब्रेन करना है. ये लोडिंग का फ्रेम बना हुआ है. ट्राई एक्सिल एपरेटस है. लोडिंग कैप है. यहाँ पे वर्टिकल लोड लग रहा है. लोडिंग पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है. ये आपकी रेडियल डायरेक्शन में इसके स्ट्रेसेस लग रही हैं. सोयल स्पेसिमेन इसके अंदर हैं. प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन आपने लगा रखी है यहाँ पे नीचे की तरफ दोनों साइड. पोरस डिस्क है यहाँ पे वाटर को पास आउट होने के लिए. यहाँ पे आपके ड्रेन वाटर कलेक्ट भी है. वॉल भी लगे हुए हैं दोनों साइड. सेल प्रेशर मेजरमेंट है यहाँ पे. वॉल्व है दोनों साइड. पोर प्रेशर मेजरमेंट एंड ड्रेनेज बोथ वॉल्यूम वाटर कैन बी मेजर्ड और पोर वाटर कैन बी मेजर. पोर वाटर प्रेशर अगर मेजर करना है तो यहाँ पे बिशप एपरेटस को ऐड ऑन कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए इस पाइप के साथ. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पोर वाटर प्रेशर. पोर वाटर प्रेशर मिल गया. टोटल स्ट्रेसेस आपको पता है और यू कैन माइनस दैट वैल्यू एंड यू विल गेट द इफेक्टिव स्ट्रेस. इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. वीडियोस के बाद में क्लियर होगा कि कैसे करते हैं. इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म. इतना इजी नहीं है टेस्ट परफॉर्म करना. द मेम्ब्रेन इज यूज टू प्रिवेंट. जो स्पेसिमेन होगा उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगाई जाती है. यूज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ प्रेशराइज्ड सेल फ्लूइड. जो आपका ग्लास का ट्यूब आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जनरली वाटर ही होता है. और यहाँ पे आपका स्पेसिमेन इसके अंदर लगता है और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगाई जाती है कि बाहर का जो लिक्विड है उसने जो प्रेशर आपके स्पेसिमेन के ऊपर डालना है, ठीक है, तो वो अंदर ना जाए. ठीक है, उसके लिए सेल फ्लूइड वाटर पेनिट्रेटिंग इनटू द सोइल स्पेसिमेन. इसीलिए कि जो प्रेशराइज्ड सेल फ्लूइड होगा दैट कुड नॉट बी पेनिट्रेटेड इनटू द सोइल स्पेसिमेन. द ट्राइएक्सियल सेल इज फिल्ड विद द वाटर एट द रिक्वायर्ड प्रेशर. जो कि आपकी सेल थी, जो ट्यूब थी, ग्लास थी, वो फिल किया जाता है वाटर के साथ एट रिक्वायर्ड प्रेशर. थर्ड सब्जेक्टिंग द सोइल स्पेसिमेन एट एंड ऑल अराउंड द प्रेशर. चारों तरफ से आपका प्रेशर एनवलप बन जाता है. दिस इज कॉल्ड प्रेशर और कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा सी. जो कि आपके कन्फाइनिंग प्रेशर जो अभी बात कर रहे थे वो हम उस पर लगा देते हैं. इट एक्ट्स रीडिंग ऑन द वर्टिकल सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन. जो एक्ट करेगा किसके ऊपर लॉन्ग करेगा? वर्टिकल सरफेस के लॉन्ग, रेडियली एंड एक्चुअली एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्पेसिमेन. ठीक है, विद द सेल प्रेशर हेल्ड कांस्टेंट. जो कि सेल प्रेशर है वो वर्टिकली रहेगा, हेल्ड कांस्टेंट. एडिशनल एक्सियल स्ट्रेसेस आर अप्लाइड. किसकी वजह से? थ्रू विद द रैम ग्रेजुअली एक्चुअली अप्लाइड. जो कि ऊपर आपने अगर ध्यान से दिया होगा ये पी लोड लग रहा है, ये ग्रेजुअली अप्लाई होगा इसके ऊपर. ठीक है,
एक्सियल अप्लाइड दिस टर्म्ड एज डेविएटर सिग्मा सी। जो बार की तरफ से हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेसेस लग रही थी शेल के फ्लूइड का जो पोर किया हुआ था उसकी वजह से उसको हमने क्या बोला, कन्फाइनिंग प्रेशर, जिसको रिप्रेजेंट सिग्मा सी। और डेविएटर स्ट्रेस है सिग्मा डी, जो कि ऊपर हमारी एक्सियल लोड की वजह से लग रहा है, जो ग्रेजुअली रैम के साथ लगा रहे हैं। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ डेविएटर स्ट्रेस, जो स्ट्रेस हमने अप्लाई किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन बिकम मेजर प्रिंसिपल प्लेन। जैसे ही आपने वो फोर्स अप्लाई किया, अब मैं बताऊंगा वो मेजर प्रिंसिपल। पहले आप अगर देखोगे बिफोर अप्लाइंग द डेविएटर स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल प्लेन इज द दैट वर्टिकल प्लेन, ठीक है, जहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस लग रही थी। और जैसे ही आपने डेविएटर स्ट्रेस लगाया, मतलब वो जो वर्टिकल एक्सियल स्ट्रेसेस आपने अप्लाई की एक्सटर्नली, उसके बाद में जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन होगा वो वर्टिकल बन जाएगा एंड सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन बन जाएगा, और वर्टिकल है वो आपका माइनर प्रिंसिपल हो जाएगा। हमें ये पता है कि मैग्नीट्यूड जिस प्लेन के ऊपर ज़्यादा होगा वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस प्लेन होता है, और जिसपे कम मैग्नीट्यूड होगा वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन होगा। A failure major and minor principal stress are noted and used to draw the Mohr circle corresponding to the different sample of soil. उसके बाद में हमने मोहर सर्कल ड्रॉ करना है। ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमें अगर पता लगी, पहले अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस पता लग जाती है तो हम क्या करेंगे, मोहर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। मोहर सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सारे मोहर सर्कल को टेंजेंटली कट करते हुए जाएगी। वो आपकी लाइन क्या कहलाती है, मोहर फेलियर एनवलप कहलाती है, मोहर कुलम फेलियर एनवलप बन जाएगा। A line tangent to the circle, जो सर्कल हमने ड्रॉ किया आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ माइनर एंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, tangent circle is drawn to give Mohr Coulomb failure envelope from which shear parameter are noted। अब वो लाइन आपको क्या करेगी, टेंजेंशियल पॉइंट पे कट करेगी, और उस जो टेंजेंट पॉइंट हमें मिलेगा वो हमें क्या बता देता है, shear strength बता देता है, ठीक है। Note at any time duration this test either pore water line is open एंड ड्रेनेज लाइन इज क्लोज और वाइस वर्सा। अब आपको क्या किस कंडीशन के लिए अप्लाई करना है, आप कंटिन्यूस साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। आप एक बार, या अगर बोर वाटर प्रेशर मेजर करना है तो आपको क्लोज करके वो कीजिए, अदरवाइज वॉल्यूम करना है तो उसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज आइदर द पोर वाटर प्रेशर मेजर्ड विल बी मेड अंडर ड्रेनेज अनड्रेन्ड कंडीशन, और द वॉल्यूम चेंज विल मेजर ड्यूरिंग द ड्रेन्ड कंडीशन। तो अब आपको ये कंडीशन किस पे चाहिए, उसके हिसाब से आपने वॉल को ओपन और क्लोज कर लेना है। इफ़ यू वांट पोर वाटर प्रेशर मेजर्ड विद will be made under undrained condition, in that case wall should be closed. If you want to calculate during drained condition, you have to open and calculate the expulsion of water. Note this test can be performed for all the drainage condition, ये कोई भी कंडीशन होगी उसके लिए टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। पोर वाटर प्रेशर मेजरमेंट इन दिस टेस्ट डन यूजिंग बिशप्स पोर वाटर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो आपने वॉल के साथ कनेक्ट कर देना, यू कैन मेजर द पोर वाटर प्रेशर। इन दिस टेस्ट पोर वाटर प्रेशर डेवलप्ड इन द स्पेसिमेन कैन बी नेगेटिव आल्सो सम केसेस। ये नेगेटिव कब के हो जाएगा ये बताएगा कोई मुझे? आपको मैंने बताया होगा ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, प्री कंसोलिडेशन, नॉर्मल कंसोलिडेशन। अगर प्री कंसोलिडेशन अगर आपका पहले हुआ है, प्री कंसोलिडेशन से ज़्यादा है, इन दैट केस द वैल्यू फॉर वाटर प्रेशर कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ऑलरेडी आपको मैंने आइडिया दिया है इसके बारे में। So this is the way cell, this is the your soil specimen, load is applied, this is a sigma c confining pressure which is equal to sigma 3, again initially before the deviator stress applied, आफ्टर द डेविएटर स्ट्रेस अप्लाइड, जैसा कि बताया था सिग्मा सी और सिग्मा डी। सिग्मा सी ऑलरेडी इज कन्फाइनिंग प्रेशर इज एक्टिंग ओवर देयर, और आपने एडिशनली वर्टिकल सरफेस के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया था, डेविएटर। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है नाउ ऐड कर दीजिए, और जो एडिशन के बाद आएगा तो ये वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी किससे, सिग्मा सी से और सिग्मा 3 से। इसीलिए जो आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन है वो अब हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, ना कि वर्टिकल होगा, ठीक है। Here sigma c is equal to sigma 3 minor principal stress, sigma 1 is sigma 3 plus sigma d major principal, sigma d जो कि डेविएटर स्ट्रेस है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3।
If you see here, deviator stress at failure is also termed as confined compressive strength. जो कि डेविएटर स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हो वर्टिकली लग रही है, आपके वो मटेरियल को क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है, और कन्फाइंड ऑलरेडी है वो। कन्फाइंड किसके अंदर है, एक सिलेंडर के अंदर है जो कि कन्फाइंड है बाय द वाटर, जो फ्लूइड उसके अंदर भरा हुआ है उसके अंदर कन्फाइंड है, ठीक है। कंप्रेसिव और जो स्ट्रेंथ आप अप्लाई कर रहे हो उसके अगेंस्ट जो सोयल मीडियम ने स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस अप्लाई करना है against the vertical load, that is your compressive strength, which depend upon the value of sigma 3। अब sigma 3 के ऊपर डिपेंड करेगी ये, जो कि कन्फाइनिंग प्रेशर है। अब sigma 3 बढ़ेगा तो डेविएटर स्ट्रेस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, बिकॉज sigma 3 बढ़ने से आपका sigma 1 बढ़ेगा, और sigma 1 की वैल्यू है वो कंपेरेटिवली sigma 3 से ज़्यादा बढ़ेगी, इसीलिए डेविएटर स्ट्रेस भी बढ़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों का तो डिफरेंस है, नेगेटिव निकल के आ रहा है ना, तो सिग्मा 1 3 बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू शुड भी घटनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बिकॉज सिग्मा 3 इफ इंक्रीज तो सिग्मा 1 आपका क्या होगा, कंपेरेटिवली ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही निकलेगा, मतलब ज़्यादा ये भी बढ़ेगी इन दैट केस। हायर द वैल्यू ऑफ सिग्मा 3 हायर इज द डेविएटर स्ट्रेस, जो कि अभी मैं आपको मैथमेटिकली अगर आप रिलेट करने की कोशिश करो तो सो कीप इन योर माइंड ये ऐसा क्यों हो रहा है। जी, सिग्मा 3 बढ़ेगा तो डेविएटर स्ट्रेस भी बढ़ेगी, वाई सो, बिकॉज सिग्मा 3 बढ़ने से आपकी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है दे आर गोइंग टू बी इंक्रीज मच मोर देन द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और इसीलिए सिग्मा 1 से जो डिफरेंस आउट करोगे तो वो वैल्यू अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी मोर। तो सिग्मा डी एफ दैट इज अ डेविएटर स्ट्रेस एट फेलियर विच इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 एट फेलियर विच इज इक्वल टू पी, जो कि प्रेशर आपने अप्लाई किया है, बाय एरिया एट फेलियर। अब यहाँ पे जो एरिया किया हुआ है ना, ये एरिया एक्चुअल एट द टाइम ऑफ फेलियर। लास्ट जो हमने डायरेक्ट शीयर टेस्ट किया था वो हमने एक्चुअल जो इनिशियल एरिया था, जो पर आपके स्पेसिमेन का इधर सिलेंडर सर्कल था और आपका सर्कुलर सेक्शन था, उस केस के अंदर आपका वो इनिशियल एरिया था, एट द टाइम ऑफ फेलियर हमने मेजरमेंट नहीं किया था। बट यहाँ पे जो एरिया आएगा वो आपका फेलियर का एरिया आएगा, तो स्ट्रेस जो मिलेंगी वो आपकी एक्चुअल स्ट्रेसेस मिलेंगी, ठीक है। Let A note the area of cross section before loading. In that case, pi d note square by 4 pi d square by 4 AF volume F by length। तो बेसिकली एरिया ऑफ फाइनल हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम जो स्पेसिमेन का होगा वो मेजर कर सकते हैं, लेंथ हमें ऑलरेडी पहले ही पता थी स्पेसिमेन की, उसमें जो चेंज आएगा। तो V वॉल्यूम में चेंज क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर होगा तो स्वेल हो, जैसे कि आपकी कंडीशन अगर आप देखो तो प्री स्ट्रेसेस अगर ज़्यादा लगी हुई है हमारे, मान लो कि प्री कंसोलिडेशन ज़्यादा है, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर जो स्ट्रेसेस थी जो सोयल स्पेसिमेन के ऊपर ज़्यादा थी, और आप अभी जो लगा रहे हो कम लगा रहे हो, तो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, जो आप रिलीज कर रहे हो लोड को। सपोज करो आपने एक सोयल को आपने पहले लोड डाला हुआ था 1000 किलो न्यूटन, और अब आप जो लोड डाल रहे हो वो 700 डाल रहे हो, तो बेसिकली वट दैट हैपनिंग 300 एक तरह से रिलीज हुआ है लोड, तो रिलीज होने का मतलब वो एक्सपेल होगी, तो वॉल्यूम आपका बढ़ भी सकता है इन दैट केस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ें भी पॉसिबल है, स्वेलिंग की कंडीशन भी हो सकती है, दैट्स वाई दैट प्लस माइनस साइन इज मेंशन। वी नोट प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा वी, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी चेंज, ठीक है, लेंथ नहीं बढ़ने वाली है, वो बल्जिंग आउट हो जाएगा स्पेसिमेन, लेंथ इज नॉट गोइंग टू बी इंक्रीज, ठीक है। बल्ज होगा मतलब लेटरली वो बढ़ जाएगा कंपेरेटिवली, दैट्स वाई वॉल्यूम माइट इंक्रीज ओवर देयर, ठीक है। तो जो लेंथ निकल के आएगी एल नोट माइनस डेल्टा एल। अब यहाँ पे बी नोट बाई एल नोट क्या हो जाएगा, आपका ए नोट हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। 1 माइनस, यहाँ से कॉमन आउट निकालोगे, 1 माइनस डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल मतलब एक्सियल स्ट्रेन, तो ए नोट ब्रैकेट प्लस माइनस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइड बाय 1 माइनस एक्सियल स्ट्रेन, तो EV is volumetric strain, EL epsilon EV is equal to volumetric strain, epsilon L is axial strain। तो ये यहाँ से ये चीज़ें निकल के आ जाएंगी। एंड फॉर अनड्रेन्ड कंडीशन, इफ इट इज अनड्रेन्ड तो पोर वाटर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा V कम्स आउट टू बी जीरो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो आ जाएगा, AF है जो फाइनल आपका आएगा A नोट बाई 1 माइनस एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है।
तो आपके ये मोहर सर्कल बनेंगे। ये आपका फिर से वर्टिकल पे शियर स्ट्रेस है, हॉरिजॉन्टल पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस है। आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिए, 3 टेस्ट परफॉर्म किए मान लीजिए। तो सिग्मा 3 एट फेलियर F1, सिग्मा 1 फर्स्ट स्पेसिमेन का ये मोहर सर्कल है। लेट मी, दिस इज द फर्स्ट स्पेसिमेन मोहर सर्कल, सेकंड मोहर सर्कल, थर्ड मोहर सर्कल। ठीक है, सिग्मा 3F1 स्पेसिमेन का, सिग्मा 1F इसका फर्स्ट, इसी तरीके सेकंड, देन थर्ड। और अब आपने क्या करना है, just draw the tangential line to the Mohr circle which represent the Mohr Coulomb failure envelope। और जो टेंजेंट पे कट करेगी, ये जो पॉइंट आपके वर्टिकली यहाँ से मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे, टाउ एफ एफ और सिग्मा एफ एफ, टाउ एफ एफ सिग्मा एफ एफ, ये पॉइंट जो आपको मिलेंगे। और इस लाइन से अगर आप इससे मिला देते हो तो ये पॉइंट आपका क्या निकल के आ जाता है, पॉइंट ऑफ पोल। ये आपका पॉइंट क्या आएगा, पोल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको मिलाओगे तो ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन आ जाएगा, ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन आ जाएगा। और आपका टेंजेंशियली जो ड्रॉ करोगे एफ के साथ फेलियर प्लेन के लो, तो वो आपका क्या आ जाएगा, फेलियर प्लेन। ये चीज़ें ऑलरेडी हमने पीछे देखी हुई, तो वो आपका प्लेन आएगा फेलियर प्लेन। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। सो आई एम अनम्यूटिंग एवरीबॉडी, यू कैन क्वेश्चन योर्स। Now, students, you can unmute yourself if you have any question related to anything till now that we studied, you can ask. So, in the last case, अगर आप compare कर रहे हो, दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। In last case में हमने पहले फेलियर एनवलप बनाया, फेलियर एनवलप के बाद आपने एक मोहर सर्कल ड्रॉ किया जो कि टेंजेंट लाइन पे था किसी पॉइंट के साथ। वो मिलने के बाद हमने मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेसेस निकला, फिर एक फेलियर लाइन ड्रॉ किया, पोल लोकेट किया, पोल के साथ आपके लाइन मीट किया सिग्मा 3 से और सिग्मा 1 से। दैट दोज पॉइंट्स वर योर प्रिंसिपल प्लेन है, मेजर प्रिंसिपल एंड माइनर प्रिंसिपल। तो ये आपका माइनर प्रिंसिपल प्लेन है, अगर मेजर चाहिए तो ये मेजर आ जाएगा। तो उसी तरीके से ओरिजेंटल फेलियर के साथ आपने ड्रॉ कर लेना, दैट कम्स आउट टू बी फेलियर प्लेन। वो क्या होगा, अल्फा। Yes, student, if you have any question, you can ask. Anyone? Am I audible to everyone? Yes, sir. बच्चे किसी को कोई क्वेश्चन है, इवन देन आफ्टर द क्लास इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन पुट इनटू द पर्सनल मैसेज, सो आई विल रिस्पॉन्ड टू यू इन दैट। कोई क्वेश्चन होगा, बाकी एवरीथिंग इज मेंशन इनटू द स्लाइड्स, कोई भी कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं है। जो वर्ड वाइज वर्ड कुछ चीज़ें थी, वीडियोस आई विल शेयर विद द गूगल क्लासरूम, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। ट्राइक्सियल टेस्ट का और डायरेक्ट शेयर टेस्ट का दोनों का वीडियो लिंक होगा, दैट आई विल शेयर टू यू। You can follow the link and see how to perform both the test. Without seeing the test, you will not get idea actually how to perform. अभी तो आपको मैंने just brief किया है कि ऐसे ऐसे होता है। Actually आप थोड़ा सा view कर लोगे तो you will better idea how to do that. ठीक है, then nobody is asking the question.